methodology and therapeutic approach, right? So what is the meaning of therapeutic approaches? क्या है इसका meaning therapeutic approaches? Okay, yes. Give some treatment regarding the problem of the child. Okay. Problem of the child. तो यहाँ पे जो whatever therapeutic approaches we will be doing over here, that we will be knowing that how we can do these therapeutic approaches on ourselves and also on the children of course. लेकिन हम अपने ऊपर अपने आप को कैसे हील करेंगे या एक काउंसलर कौन-कौन से थेरेपेटिक बेसिक अप्रोचेस जो यूज करते हैं उसके बारे में आपको आज पता चलेगा. We'll do one small activity wherein you will be writing your name. आपको अपना नाम लिखना है. One characteristic of yours, कोई भी एक characteristic आपका है वो आप लिखो. Any one positive characteristic जो भी आपकी quality है कोई वो लिखो. And कोई एक evidence लिखो. Any one evidence to prove that yes you have that characteristic. कोई एक evidence. For example, अगर मान लो कि आप helping हो, कभी last week में आपने किसको help किया, ठीक है? तो कोई भी चीज जो आप हो उसका evidence क्या है? किसी को अगर आप बताओगे कि I have this characteristic, so how will you make the other person know that yes you have this other characteristic, that characteristic? For example, if I say that I have good communication skills, तो मैं बोल सकती हूँ कि मुझे पता है कि माइक कैसे हैंडल करना है, मैं वर्कशॉप्स लेती हूँ, मैं इंटरैक्ट करती हूँ लोगों से, right? Every day I interact with some or other group, whatever, anything, whatever is your evidence. Create an aeroplane out of it. इससे एक aeroplane बनाना चाहिए. Now what you have to do? Sitting at your place, अपनी जगह पर बैठकर इसको जितना दूर फेंक सकते हैं, as far as possible, and see that आपका कहाँ पे गिरा हुआ, ठीक है? Okay? As far पीछे, पीछे आगे You don't pick up your own aeroplane. अब किसी का भी aeroplane फटाफट pick up करके अपनी सीट पे बैठो. एविडेंस है उस कैरेक्टरिस्टिक से रिलेटेड के बारे में दैट यू शेयर, और अगर आपको लगता है कि दैट कैरेक्टरिस्टिक यू आल्सो पोजेस देन यू कैन शेयर विद योरसेल्फ. ओके, फॉर एग्जांपल जैसे सुष्मिता मैम का है आपके पास, तो नाउ व्हाट शी कैन से ब्रीफ विद व्हाट कैरेक्टरिस्टिक. आई हैव पेशेंस इफ समथिंग हैपेंस. पेशेंस. तो पेशेंस से रिलेटेड आपको कुछ लगता है कि सुष्मिता मैम के बारे में आप कुछ कह सकते हो? Yes, ma'am, she is very patient. Like the evidence. Like I've seen her in the class to handle the students with very patient. Very patient. तो मैंने विटनेस किया कि उनको क्लास में, तो whenever you are seeing the characteristic, आपको लग रहा है कि आप भी उसको validate कर रहे हो, right? Are you validating yourself? You also are validating that characteristic. कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं? आपके पास जो है ओके, तो अभी आप डिम्पल नाम का है आपके पास.
Actually, I don't. Do you feel that she is good? I feel she's. Okay. How can you say that she is good? She takes up any challenges when it comes at any point of time, like boldly as a Very nice, very nice. She takes up challenges, whatever comes on her way. ठीक है. And she is very expressive also, हाँ? और कुछ चीजें जो आप लोग को लगता है डिम्पल मैम के बारे में उनके बोल्डनेस को दिखाता है. जो भी वो क्लासेस अपना पढ़ाती है, जब भी उसके लिए कोई डिसीजन लेना होता है, जब तक न्यू सेशन कम्स या कुछ भी, तो शी इज ऑलवेज देयर एंड शी टेक्स अ डिसीजन आल्सो. Decision making is a part of boldness. है ना? ठीक है, very good. Anybody else? कुछ और है? हाँ? हाँ? Okay. Name is not here. अरे कौन ऐसा है कि जिसका नाम नहीं लेता? And in Diwali, I help my wife in cleaning house. ओके, क्या हेल्पिंग? ओके, ठीक है. अच्छा, आप कैसे बोल सकते हैं कि निमेश सर हेल्पिंग है? कोई है जो कि रिलेट कर सकता है? इन्होंने खुद लिखा है कि मैं हेल्पिंग हूँ, पर क्या उनका ये पब्लिक सर्व भी है? कैसे? और जैसे बोला गया कि क्या वो पब्लिक सर्व में हेल्पिंग है, तो सब लोग एकदम इकट्ठे बोल रहे थे. सो दैट इटसेल्फ शोज. सीरियल सर कुछ बोल रहे हैं? हाँ, कभी भी मना नहीं करते और ऊंची आवाज भी नहीं. ओके, तो ऐसे लोगों का यस, he helps out of the way, he goes out of the way to help. Yes. Okay, now यहाँ पे निमेश सर, मेरी आपसे ये सवाल है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं ना, ये लोग थोड़े स्ट्रेस में रहते हैं क्योंकि वो किसी को मना नहीं कर सकते, मना नहीं करते हैं. तो इसके लिए कौन सा स्ट्रैटेजी आप अपनाते हो ताकि आपका स्ट्रेस इस हेल्पिंग नेचर के कारण ना हो? Are you getting this point? है ना? एक पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव भी ला सकते हैं. क्या पहला क्वेश्चन है, क्या आप अपने आप को स्ट्रेस में महसूस करते हैं? कभी. See, how the psychologist will ask question? A psychologist will not ask them, अच्छा तो आप हेल्प करते हो तो आप स्ट्रेस में होंगे. मैंने कहा ऐसे लोग, क्या बोला मैंने? ऐसे लोग कभी-कभी अपने आप को स्ट्रेस में महसूस करते हैं. क्या आप महसूस करते हैं? कभी-कभी. ओके, तो आप स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी ना हो जाए, प्लस अपने जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हेल्पिंग है उसको आप मेंटेन करो. उसके लिए आप कौन सी स्ट्रैटेजी को आप अपनाते हैं? मोस्टली जो भी काम नहीं कर मेरे पास जो भी हेल्प लेने के लिए आते हैं वो ऑलरेडी मेरे पहले कोई टीचर या कोई भी जो हमारे स्कूल के रिलेटेड होते हैं उनके साथ पहले भी ऑलरेडी वो हो चुका हूँ. वो चीज़ को मैं याद कर लेता हूँ कि उस टाइम मैंने कैसे किया था, क्या किया था, और बाकी जो लोग हैं उनसे हेल्प ले लेता हूँ. ओके. उनसे जो भी सीनियर्स हैं तो उनसे जैसे मान लो कि 5 लोग आपके पास आ रहे हैं हेल्प करने के लिए, तो आपका तो अपना तो काम रह जा रहा है ना? That stress comes to us sometimes. He comes and share. No, he comes and share that my classes are. बाकी मैं काम करूँ वो. ओके, आई टेल यू, मैं जो भी निवेश सर को जानती हूँ वो उसके लिए क्या करते हैं. वो उसके लिए देयर इज अनदर, जो इसका हेल्पिंग जो लोग होंगे ना, उनके साथ साथ एक तो कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना है ना? तो इस कम्युनिकेशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग कि अगर उनको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो क्लियर बोलेंगे कि मैम अभी मैं ये कर रहा हूँ, मुझे ये करना है, और आपने मुझे ये काम दिया, आप बताओ मैं कौन सा करूँ, आप जैसा बोलोगे मैं कर दूँ, है ना? तो ये काम भी ऑलरेडी मेरे पास है, प्रिंसिपल मैम ने दिया हुआ था, और अभी आप ये वाला काम बोल रहे हैं, तो कैन यू मेक इट क्लियर कि व्हिच वन शुड आई डू? वेरी नाइस ना, हेल्पिंग करने मना भी नहीं किया, पर एट द सेम टाइम नॉट अलाउइंग दैट स्ट्रेस टू ट्रांसफॉर्म इनटू डिजीज. स्ट्रेस को बीमारी का रूप नहीं देते. मॉडरेट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस भी ऑल देना है, बट उसको डिजीज में कन्वर्ट नहीं करना. कोई बीमारी नहीं है आपको, नाउ टेल मी, ये जो आपने छोटा सा एक्टिविटी किया, इससे व्हाट इज द, कैसा महसूस हो रहा है? मुझे एरोप्लेन फेंक के, एरोप्लेन उठा के, वी आर नॉट टेकिंग ऑल द थिंग्स, सारी चीजें हम नहीं दे रहे, बट आई वुड बी शेयरिंग यू द मोटिव ऑफ दिस एक्सरसाइज. ओके, कैसा महसूस हो रहा है? व्हाट आर यू फीलिंग?
Okay. Now see that what is the motive of कोई भी psychological theory explain करने के लिए मैं आपको एक motive बताती हूँ, मतलब एक गेम करवाती हूँ, because these are technical things, है ना? जो चीज़ हम लोगों ने 10 साल 12 साल में पढ़ा है वो आपको मैं 1 घंटे में छोटी छोटी बातें बता रही हूँ। तो ऑब्वियसली मैं अगर टेक्निकल चीज़ें बताऊँगी तो आप बोर हो जाएंगे। तो ये बताऊँगी ये साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं, क्या किस लिए ये इस टेक्निक को क्यों यूज़ किया मैंने। इस टेक्निक को मैंने यूज किया टू से यू द बेसिक ऑफ काउंसलिंग। आप लोग कैसे महसूस कर रहे हो? रिलैक्स महसूस कर रहे हो, है ना? सो व्हाट इज द मोटिव ऑफ काउंसलिंग? जो स्ट्रेस जोन से किसी को रिलैक्स स्टेट में ले आना, ठीक है, विदाउट गिविंग लेक्चर। साइकोलॉजी में कोई लेक्चर नहीं, तुम्हें ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, ये करो वो करो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। फिर 2 घंटे की बातचीत की, उसके बाद बोल दिया क्या मैंने तो इतनी काउंसलिंग की उसकी और वो बदलेगा चेंज ही नहीं हो सकता, बिकॉज आपने वो कहा जो आपके अंदर है, राइट? आपने प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग को यूज ही नहीं किया ना। दैट इज द प्रोसेस although not fun will make the person feel happy, right? Will make stress free. Then catching hold of the childhood memories. Catching hold of these childhood memories मतलब कि 0 से 5 साल का, take your seat, 0 से 5 साल का किसी भी इंसान के लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देन उसके बाद प्ले करता है 0 to 7 years and then 7 to 14 years. 0 to 7 years बोलते हैं वो है maternal years. 7 to 14 years बोलते हैं उसको maternal years. क्यों ऐसा बोलते हैं? आप देखोगे 0 to 7 years में ना कोई भी बच्चा अगर गिरे कौन दौड़ता है पहले, है ना? और 7 to 14 years में कौन खेलता है बच्चे के साथ? आउटडोर एक्टिविटीज शुरू हो जाते हैं। फादर begins playing with the child. तो 7 to 14 years is the effect of फादर और फादर फिगर, मदर और मदर फिगर। मे भी किसी बच्चे का मदर नहीं है तो मे बी ग्रैंडमा उसको पाल रही है, देख रही है, देखभाल कर रही है, और मदर है फिर भी ग्रैंडमा उसको ज्यादा उसको मदर फिगर किसका पड़ा है, उस बच्चे के दिमाग में मदर फिगर कौन है वो जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? फॉर एग्जाम्पल दीप्ति मैम हो सकता है कि अपनी मम्मी से ज्यादा किससे क्लोज हो, दादी से क्लोज है, तो इनके लिए मदर फिगर कौन होगी? तो अब दादी अगर दौड़ भाग करके काम करती थी ऐसा, है ना? दौड़ भाग करके काम करती थी तो क्या कैरेक्टर आया इनमें, क्या कैरेक्टरिस्टिक आया, राइट? सो फादर फिगर का मतलब ये नहीं कि हमारे मतलब वी ऑल हैव मदर फिगर एंड फादर फिगर विद इन आवरसेल्व्स आल्सो। फादर फिगर का मतलब क्या होता है, क्या करते हैं? फादर का मेन रोल क्या होता है? गाइड करते हैं, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। देन सेकंड और फादर का क्या प्रोवाइड करते हैं? फाइनेंशियल सपोर्ट, है ना? फाइनेंशियल सपोर्ट। इमोशनल सपोर्ट कौन प्रोवाइड करता है? मदर प्रोवाइड करता है। तो मदर अगर मैच्योर्ड है, मदर फिगर अगर मैच्योर्ड है तो बच्चा कैसा ग्रो होगा? इमोशनली मैच्योर्ड ग्रो होगा। अगर मदर मैच्योर्ड नहीं है वो बच्चे कैसे होंगे? कंप्लेनिंग होंगे, है ना? कंप्लेनिंग होंगे। मदर गुस्से वाली है तो बच्चा कैसा होगा? ठीक है। तो और 7 to 14 इयर्स में फादर बहुत स्ट्रिक्ट है तो बच्चा इनिशियली बहुत डरा हुआ होगा, बाद में कैसा बनेगा? वैसे ही स्ट्रिक्ट बनेगा। ओके, तो यहाँ पे काउंसलिंग में 2 तरह के काउंसलिंग होते हैं। तो एक तो है काउंसलिंग इज हेल्पिंग प्रोफेशन। दिस इज हेल्पिंग प्रोफेशन जहाँ पे काउंसलर्स पैसे लेके हेल्प करते हैं। प्रोफेशनली मतलब पैसे लेके, और अच्छे खासे पैसे लेके। फॉर वन काउंसलिंग सेशन, एक काउंसलिंग सेशन का एटलीस्ट 1500 to 2000 रुपीज पर, जिसमें भी कोई भी अगर यहाँ पे गया हुआ है काउंसलिंग के लिए उनको पता होगा या रिलेटिव्स गए हुए। सो इट इज एन एक्सपेंसिव प्रोफेशन, ठीक है। और उसके बाद इट इज व्हाट, इट इज टॉकिंग प्लस थेरेपी। सिर्फ टॉकिंग नहीं है, टॉकिंग मिक्स्ड विद थेरेपी है। देन इट हैज अ थेरेपेटिक रिलेशनशिप। ऐसा नहीं कि जिसकी काउंसलिंग करेंगे उसको भाई बहन बना देंगे, है ना? तो ऐसा मतलब कई बार ऐसा होता है कि हमारी लाइफ में वी नीड टू टेक अ पर्सन एज अ पर्सन, है ना? मैं बोलूँगी अरे आई नो मैं कितनी अच्छी है, आई हैव नेवर सेड लाइक दिस दैट शी इज माय सिस्टर और शी इज लाइक माय सिस्टर, डिड आई टेल? है ना? कभी मैंने बोला ये तो मेरी बहन है, ये तो मेरी बहन
Did I ever tell her? So there is a position of a friend, isn't it? So therapeutic relation means what? किसी को भी बहन भाई कुछ भी नहीं बनाना. It is a professional relationship where the person is the counselee and you are the counselor. तो अगर हम क्लास में ये तो मेरा बेटा जैसा है, ये तो मेरा बेटा है. No, it's an individual. The person has come for counseling for your help. So maintain that individuality of that person, right? जो हम आज बात करेंगे काउंसलिंग का वो पहला बात करेंगे. फॉर एग्जाम्पल दीप्ति मैम इधर आइए. आपको जैसे रेगुलर हेल्थ को ठीक रखना होता है आपको, जैसे कोविड के दौरान आप बोल रहे थे कि मैं थोड़ा सा मोटी हो गई हूँ, तो आप हेल्थ को ठीक रखने के लिए आप क्या क्या चीज़ें करते हैं? पहले तो मेरा ब्रेकफास्ट पूरा एकदम हेवी होता है. मैं ब्रेकफास्ट के बगैर वन थिंग एक ही चीज़ ना, एक ही चीज़ बता दें. ब्रेकफास्ट हैवी होता है. और बताओ और कौन क्या करते हो हेल्थ फोकस के लिए? ना डेली क्या करते हो? क्या करते हैं? थ्राइस अ वीक. ओके चलेगा. थ्राइस अ वीक. अर्ली स्लीपिंग कितने बजे? 9:30. ओके यस. हाँ रनिंग. ओके वेरी गुड. मेल्स क्या करते हो? हाँ सूर्य नमस्कार. ओके Whatever I eat, I think about the fate of it. व्हाटएवर आई ईट I think about the fate of it. क्या बनेगा? उससे बॉडी में क्या बनेगा, ये जो खाना मैं खा रही हूँ. कॉन्शियस माइंडफुल ईटिंग. ओके फाइन. तो ये सारे हैं जो कि आप हेल्थ के लिए करते हो. लेकिन एक और बात आ जाओ. अभी आप हॉस्पिटल में भर्ती हुए, तो हॉस्पिटल में क्यों भर्ती हुए? मेरे को एकदम पेट में दर्द हो गया, फिर सारे टेस्ट करवाए तो बॉल पेडल में स्टोन निकला. उसकी वजह से मेरे को बहुत पेट दर्द हुआ और मेरे को हॉस्पिटलाइज किया था. उसके बाद ऑपरेशन हुआ. नहीं कुछ नहीं. अभी डॉक्टर ने बोला कि आप बॉल पेडल में दवा लगा दो, फिर मेरे हस्बैंड मना कर रहे कि उसके बाद फिर साइड इफेक्ट होते हैं, इसलिए मना कर. ठीक है. ओके फाइन. तो यानी कि हॉस्पिटलाइज हुए क्योंकि पेट में बहुत दर्द हुआ था. ओके ऐसा तो नहीं कि पेट में दर्द हुआ था तो इसके बाद बोला कि चलो जी अब तो ब्रेकफास्ट पूरा करते हो, सुबह सुबह ब्रेकफास्ट पूरा करो तो ठीक हो जाएगा. ऐसा किया या फिर मतलब कभी भी बीमार पड़ते हैं आपका नी अभी सर्जरी हुआ, आपको क्या बोला गया था कि रेगुलर एक्सरसाइज करो, आप जिम करते थे, रेगुलर जिम करते थे, तो जिस समय आपका नी की प्रॉब्लम थी आपने ऐसा किया, डॉक्टर ने ऐसा बोला कि ठीक है आप नी की जो है ना प्रॉब्लम हो रही है ना, योर व्हाट इज योर हेल्थ फोकस, तो ये डॉक्टर ने कहा कि जिम जाती हूँ मैं, तो डॉक्टर ने कहा आपको कि अच्छा ठीक है आप रेगुलर जिम जाओ. क्या बोला? अभी जिम बंद करो, है ना, और ये ऑप्शन. तो दैट मीन्स हेल्थ फोकस जो है वो है प्रोएक्टिव काउंसलिंग. क्यूरेटिव क्या है? अब आपको प्रोएक्टिव को थोड़ा साइड में करो, अब आपको साइकोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत है. तो बिलीव मी आप जो क्लास में 90% करते हो ना वो है प्रोएक्टिव काउंसलिंग. जो आप मेरे पास भेजते हो या काउंसलर के पास भेजते हो दैट इज क्यूरेटिव काउंसलिंग. जिस स्कूल में प्रोएक्टिव काउंसलिंग के ऊपर फोकस किया जाता है वो स्कूल के बच्चे बहुत हेल्दी वे में डेवलप होते हैं. उस स्कूल के टीचर्स बहुत हेल्दी वे में डेवलप होते हैं बिकॉज जब आप किसी की काउंसलिंग करते हो आप स्ट्रॉन्ग बनते जाते हो. योर इंटरनल सिस्टम गेट स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर. इतने आप अंदर से मजबूत हो जाओगे ना आपको लगेगा कि यू कैन डील विद एनी सिचुएशन ऑफ योर लाइफ. क्योंकि जब आप किसी की काउंसलिंग कर रहे हो, किसी की बातें सुन रहे हो, किसी की प्रोसेसिंग को चेंज कर रहे हो, उसके दिमाग में सारा नेगेटिव प्रोसेसिंग था उसको आप पूरा चेंज कर रहे हो, तो आप क्या बन जाते हो? कहीं ना कहीं आपके अंदर भी तो वो इंसान है ना, डरा हुआ इंसान, तो वो भी चेंज होना शुरू हो जाता है. सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ काउंसलिंग. तो जब भी कोई काउंसलर होता है खुद भी ग्रो करना शुरू हो जाता है. ओके 2 persons to college में If somebody else wants to. और कौन है? और कौन आ सकता है? दीप्ति का कौन आ सकता है? और कौन आ सकता है? 1 from males and 1 from females. Very good. Okay, 1 from females. उर्वी भी बनो. कवचन करना है. दोनों बाहर जाओ. बाहर जाओ. और उस रूम में जाना जब तक आपको बुलाया जाए. उधर उधर दोनों जाना चाहिए. अगर इसलिए मैं बोल रही हूँ ताकि आप लोग इधर क्या हो रहा है वो सुनो ना. देखा है
Okay. Six, fast. हाँ, एक सेकंड। आपके पास अनुमान से 30 सेकंड्स का अलार्म लगा। चलो मैं कहती भी हूँ, आपके पास 30 सेकंड से जो मर्जी है अरे ये काम कर रहा है मेरा। अरे ये मत दो। अरे जो मर्जी करो, जो मर्जी करो, ये मत दो। टाइम क्या किया आपने? Okay, fine, thank you. What is the difference between the wait, Kawaljeet ma'am, come here. I just asked, Kawaljeet ma'am, don't say what did you do, but आपको कैसा महसूस हुआ? Did you follow the instruction? Yes. Yes. Did you like, enjoy? Yes. You enjoy. What is the feeling that you have? Feeling of accomplishment or feeling of failure? Accomplishment. Accomplishment. Okay. Clear instructions were given, so I did that, and then it was done. आपने clear instruction को follow किया और आपको अच्छा लगा. Yes. Okay. What about you? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे काउंसलिंग की गलती है या काउंसलर की गलती है? काउंसलर, राइट? काउंसलिंग का मतलब जो आ रहा है, ठीक है, जिसकी काउंसलिंग करनी है। काउंसलर कौन है? जो तो यहाँ पे इनको क्या था? कोई डायरेक्शन, इट वाज डायरेक्शनलेस और इट वाज गोल डायरेक्टेड। ओके, बैठ जाओ। वेरी नाइस। तो यहाँ पे काउंसलिंग क्या होता है? हमेशा इज गोल फोकस्ड। फॉर एग्जाम्पल, आई गिव यू एन एग्जाम्पल। अब यहाँ पे मैं रिवील करती हूँ एक चीज। रिया मैम को प्रिंसिपल से वो ऑर्डर, चाहे वो कोई भी प्रिंसिपल, चाहे वो मैं हूँ, चाहे कोई भी प्रिंसिपल हो, जाइडस के प्रिंसिपल हो, उधर के प्रिंसिपल हो, उधर किसी भी प्रिंसिपल नाम से ही वो करना है। इज इट और नॉट? हाँ, इधर। Now let me share with you the techniques which we followed for the goal-directed counseling. ये भी हमने काउंसलिंग किया, पर कैसे? This was a participatory mode of counseling. Participatory mode क्या है? जिसमें मैं आप ही का पार्ट बन गई, आप ही की दोस्त बन गई और आपकी काउंसलिंग कर रही हूँ, आपको पता भी नहीं चल रहा है कि मैं आपकी काउंसलिंग कर रही हूँ या आपके घर पे पार्टी कर रही हूँ। ठीक है? ओके। अब आपको थोड़ा थोड़ा जो भी याद आ रहा है उसके बारे में आप बताओ कि हाउ डिड यू ब्रेक दिस बैरियर एंड फील? Initially, I talk about you. नहीं, टॉक अबाउट In general, okay. नहीं, you can talk about your own journey. I used to get scared, like when ma'am used to call also, her name used to flash on the mobile, so I used to say, कुछ हो गया होगा मेरे से, so she has called. So I used to have that phobia. But once I told her, उस समय क्या होता था? Body में क्या reaction? nervousness and hands used to like See, shiver. these are the bodily reactions. हाँ. Hands used to shake, heart beat होता था, fast heart beat होता था, ठीक है? So once and whenever she used to call me in her office also, I used to prefer staying on the floor only till 3 o'clock. And at times when ma'am used to call me, he come and meet me down, or anybody else used to tell me that ma'am is calling. That time also I used to get scared. I must have done something wrong, so she is calling me. And by the time I could reach in her office, I used to shiver literally. Then once we were out somewhere, so I told ma'am, आपका फोन आता है तो मैं थोड़ा nervous हो जाती हूँ. So after that, ma'am, I could feel she did not say anything at that time, but slowly she started calling me more, making me comfortable, and she started
started the process that after the school, every time she used to call me down and she used to say, until and unless you will not come down, I will not have my tea. So from that point, the thing started, and then I was very comfortable. I used to tell her, "Ma'am, you have the tea." I used to get scared to go and have the tea also, but slowly every day she used to wait for me, and she made it a point that until and unless I will not go, she will not have her tea. So evenings we used to have tea together for months, and then I became very comfortable. She used to talk to me, and now I'm okay with her. In fact, now I am strict to her. I'm very strict to her. If she does something wrong, I don't hesitate pointing out at her, you have done wrong. It's with respect, not over-dominating her, but with respect, because I really don't want her to do anything. With what I feel, no ma'am, so I tell her on her face no. And she also gets scared of me. Now I will have to start some counseling for that. एक चीज मैं बताऊं कि एक्चुअली व्हेन आई वेंट फॉर द स्पोर्ट्स ना तो मुझे पैर में दर्द हो रहा था तो सी मेरे अनुसार वो गलत नहीं है मैं अगर नीचे बैठ गई बच्चों के साथ व्हाट्स रॉन्ग इन इट अब अकॉर्डिंग टू देम यू आर इन अ डिफरेंट प्लेस दे आर आल्सो नॉट रॉन्ग यू आर इन अ डिफरेंट प्लेस यू शुड मेंटेन द डेकोरम ऑफ अ प्रिंसिपल जमीन पे नहीं बैठते तो आप क्यों जमीन पे बैठ रहे हो तो आप बच्चों के साथ जमीन पे क्यों बैठे तो देख दीप्ति मैम के उठो ना मैंने कहा चलो ना पाँच मिनट बैठो ना कोई देख थोड़ी ना रहा है मुझे यार 5 चिल्ड्रन वर एट द कॉर्नर सो आई वाज सिटिंग विद देम कंफर्टेबली सिटिंग विद देम रॉबिन सर सॉरी उमेश सर भी आए थे है ना रॉबिन सर भी शायद आए थे तो आके बोल रहे थे उठो उठो आई डिड नॉट गेट अप देन रिया मैम उठो क्योंकि आप किसी का सुन ही रहे थे इसलिए मैंने रिया मैम को बोला मैंने बोला रिया किसी का सुन नहीं रहे थे कि रिया मैम को बुला गो प्लीज Nowadays, it so happens that when ma'am doesn't listen to the coordinators also, coordinators come and tell me, "Riya ma'am, आप जाके बोलो." They do something wrong, they come and tell me, आप जाके ma'am को समझा दो. So I've been used now, and that did so happened. Everybody was there. Dignitaries, Shri Chopra ji, everybody was there, and I understand ma'am was tired also, so she went and sat on the ground along with children. So Dipti and I think somebody else also went. So Dipti ma'am came and told me, "Riya ma'am देख सामने बैठी है." ना ठीक है, जाके बोल उठने के लिए उसको. तो मैंने कहा okay fine I'll go. So she said this sentence, she's not listening. I just went near ma'am. I said, "Ma'am," I gave my hand and she got up. In fact, all children were looking at me. Riya ma'am is so strict that ma'am is also scared and she got up immediately. So I don't know. Everybody actually creates an image for me. It's Riya ma'am and Mr. Chirag sir. He has tagged me as lady singer. He says that you have a roar of a lion and up when you are on the floor, बच्चे सब Riya ma'am आ रही हैं. So that's वेरी ट्रू एंड ट्रूली द बच्चों की चेहरा देखने लायक था मतलब वो सब रिया मैम की तरफ देख रहे थे अच्छा इनकी तो इतना पावर किसी ने नाम को खड़ा कर दिया But an outcome is also good of Riya ma'am being strict. Absolutely. Outcome is always good. Students are very happy. Absolutely, absolutely. And together with that, देखो counseling जब भी हम करते हैं coming back to counseling, this is what is called कि उनका जो डर था मेरे लिए वो निकालना. But together with that, she had other level of fear, other level of difficulties. तो वहाँ पे मैंने क्या किया? मैंने अनु मैम और अनुभा मैम का हेल्प किया. Did I take one? हाँ? What did I say? To make her feel comfortable whenever she's around you, like whenever we are also there to make her feel comfortable. Yeah, you make sure that whenever we do something or you always say, like ask me, you also like that. So I made it a point कि पानी पूरी खाने के लिए जाना है तो रिया मैम होनी चाहिए साथ में. Why? Because that will help her to come out. She's so talented, so brilliant. I don't want anybody like this to be in the zone of misery. तो अभी क्या हुआ? वो and सबसे ज़्यादा वो बाहर भी कैसे? When she started. वो जितना बचा कुचा था ना थोड़ा बहुत वो भी वो फेंक दिया. And That share also something if you don't mind. Yes, please. It was all because of ma'am.
that you should become independent and you have your vehicle, why don't you start driving? So she supported me fine. So it was the first day when I took car on my own. I was driving on alone and I met an accident near my place itself at the 4 crossing. Okay, so I paid that person 1500 and that person was behind me कि आपको और देना होगा and all. So finally I called ma'am. She said don't give him anything, but I said I've already given him 1500 and he's asking for more. I'll pay him afterwards. I was scared. So ma'am told me you come to school. So the person who was training me for driving, I told him अभी आप चला के चलो. पहले मैं अकेली चला रही थी. He brought me to the school. Then he went in ma'am's office. Then after him, I went inside. So I told ma'am accident हो गया. वो person मुझे बहुत बोल रहा था. She said अच्छा then how did you come here? It was her expression. How did you come to school? I said the driver was driving. I said then I did not drive. She said why didn't you drive? Riya ma'am, why didn't you drive? You have let me down. I was expecting you कि accident हुआ तो भी आपको ही कार चला के आनी चाहिए थी. तो literally tears rolled down my And she eyes. was expecting कि मैं बोलेंगे हाँ, और हाँ, बोलो. So tears rolled down my eyes, but she was very firm. Then she said, "Go now." I came out, and immediately I realized. I think she was, purposely being strict to me so that I should not leave driving because it usually happens कि आप इतना बड़ा accident कर लेते हो फिर आपको लगता है no, it's not my cup of tea. So next day that person came. I told him एक बार याद रखना मैम ने कल आपको भी डांटा मुझे वो सिर्फ ऊपर से डांटना था. अब आप चुप करके बैठो मैं ड्राइव करूँगी मैं रॉन्ग हूँ राइट हूँ यू विल नॉट अटर अ सिंगल वर्ड. मैं पूरे जोश में कार चला के स्कूल में आई एंड आई डिड नॉट गो टू हर आई वेंट डायरेक्टली इन माय क्लास. I knew she will take report from that person. So she asked him. That person itself went. He said, "Ma'am, Riya मैम को क्या हो गया आज?" मुझे बोला मुँह चुप बंद करके बैठे था. She did not take any help and drive करने का confidently drastic change कल क्या हुआ आज क्या हुआ. And I told that person also कि मैम ने ऊपर से सिर्फ डांटा है वो क्योंकि दिल से चाह रही है कि I should learn driving. So don't take it to your heart also कि हम दोनों को डांट मिली है. So this was how I learned driving. And now she tries different stunts on me. At times she gives a challenge कि आप हाईवे से यहाँ से वहाँ चला के मेरे घर पे आप गाड़ी अपनी चला के आओ. Otherwise I get scolded. So I see to make it a point and it's किसी को also लर्न करनी है ड्राइविंग तो मैम के घर जाके और वहाँ से ऊपर लेके गाड़ी आ जाओ. अगर आपको कर सकते हो तो आपको ड्राइविंग आ जाओ. But I will tell you, I have learned driving at this stage, but she has set an example, an inspiration for everybody. I think after me, many have started bringing car. It's a fact, ma'am. Many have started bringing car. Huh? Yeah, that's what they feel at this stage. If she can buy her, so that's good, ma'am. And Shivali ma'am also started bringing out to that. That's good, ma'am. I'll tell you one thing कि ये जो पूरा process है सिर्फ एक क्रिया मैम की बात बता रही हूँ. This took how many years? It took approximately 2 years. तो आप ये मत सोचें कि आप एक बार बच्चे के साथ बैठ जाएंगे उसकी काउंसलिंग कर लेंगे उसको लेक्चर देंगे. Absolutely. नहीं, lots of patience, but that doesn't mean that I was with Riya ma'am 24 hours. I was not there with her 24 hours. There were small tricks and strategies that I followed, and she also knew it. She also knew that ma'am was helping me. It was very transparent. And for MSc also, ma'am. Yes, for her MSc also, because I wanted कि अगर वो पढ़ाई करेंगे तो उनका दिमाग जो है बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव एंड फोकस्ड रहेगा. Right? So small strategies, taking help of others, giving her motivation and reinforcement. जब भी वो कोई अच्छा कर रही है, noticing it and appreciating. Right? That is one technique of counseling जो use किया. आज जो मैं आपको this is उसमें क्या direction क्या था, मेरा direction क्या था, what was the goal that I have set for myself with Riya ma'am? ये जो fear वाला element है वो मुझे काटना है. ऐसा नहीं कि वो confident नहीं है,
बट कई जगह पे उनका फियर जो है वो पैनिक अटैक जो है वो आ जाता है, वो मुझे काटता है। एंड बिलीव मी, अगर कोई भी साइकियाट्रिस्ट के पास वो गई होती कि मुझे प्रिंसिपल से डर लगता है, मुझे इससे डर लगता है, उससे डर लगता है, इस समय डर लगता है, अभी ये मेडिकेशन में होता है। विदाउट मेडिसिन टू क्योर समबडी, टू हेल्प समबडी, दैट इज अ बिग सेविंग ऑफ अ लाइफ, राइट। जो मेडिसिन होता है वो ब्रेन को क्या करेगा, डर कर देगा आपको, सोने में सो जाओगे कुछ, मतलब ऐसी लाइफ चलती रहेगी, ऐसे लाइफ चलाना है हमें। ओके, नाउ कमिंग टू दिस, write one negative sentence that is there in your mind for anything, for life, for yourself, for anything, that life is boring, पता नहीं मेरा फाइनेंस का क्या होगा, कोई एक नेगेटिव सेंटेंस लिखो जो कि आपको बार बार हॉन्ट करता है। अगर मैं बीमार पड़ गई हूँ, ऐसे हुए ना कोई भी चीज़, तो उसके एक कोई भी नेगेटिव चीज़ लिखो जो आपके दिमाग में कभी ना कभी आज हुआ है या कल हुआ था या कभी भी होता है, कोई भी एक नेगेटिव चीज़। दिस इज अ थेरेपी ऑफ काउंसलिंग एंड अ वेरी पावरफुल थेरेपी ऑफ काउंसलिंग। आपको मैं इसका लॉजिक भी बताऊंगी कि ये लॉजिक क्या है इसका, एक ही लिखना है ना। ओके, नाउ उसके अगेंस्ट में अब सोचो कि ये जो भी आपने लिखा है ना, तो if you want to share you can, if you don't want to share it's okay। So जो भी आपने लिखा है ना, आप सोचो कि ये आपके फ्रेंड की प्रॉब्लम है, ठीक है। नाउ आप उस फ्रेंड को क्या सजेशन दोगे, 3 चीज आपको लिखना है, 3 चीज डिफीटिंग दिस फियर और इनसिक्योरिटी और नेगेटिव, 3 सजेशंस या फिर 3 एविडेंसेस जो दोगे कि विच प्रूव्स दैट ये जो तुम सोच रहे हो ये बेकार है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो कि फाइनेंशियल डिफिकल्टी है, मुझे लग रहा है कि पता नहीं मेरा फाइनेंशियल लोन क्लियर हो पाएगा कि नहीं, क्यों, अभी तक हो रहा है ना, अभी तक तुमने किया है ना, ठीक है, तुम अच्छे से, तुम्हारे पास सारी चीज़ें तो है ना, ठीक है, तुम्हारा बेटा तो अभी ग्रो कर ही गया है ना। सो देयर कैन बी 3 things which you will give as the evidence to prove that ये जो तुम सोच रही हो ये बेकार है। इसके लिए तो 3 evidences, contrasting that, done। आप समझ रही हो, काउंसलिंग इज नॉट गिविंग लेक्चर, है ना, इसमें छोटे छोटे एक्टिविटीज होते हैं, थेरेपीज होते हैं। दिस इज कॉल्ड द थेरेपी ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी। हो गया, कर दिया। अब सबसे पहले मुझे बताओ कि व्हेन यू डिड दिस, व्हेन यू आर राइटिंग 3 evidences against that negative one, तो आपको कैसा फील? गेटिंग द सॉल्यूशन, क्या हुआ? सॉल्यूशन मिला, और कैसा फील हुआ, कैसा महसूस? यस, तो जो हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है ना, हो सकता है ये प्रॉब्लम आपके पास 5 साल पहले थी और उसको आपने बहुत डीपली सोचा और वो आपके इमोशनल मेकअप में स्टोर हो गया। अब वो जब स्टोर हो गया ना, वो डिफॉल्ट आता रहता है बीच बीच में, और वो आपका परमानेंट सेटिंग बन गया। वो आज नहीं है, आज आपकी नहीं है, लेकिन हो सकता है आपने बचपन में ऐसी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम देखी, घर पे खाना नहीं था, देयर वाज लॉट ऑफ फियर कि कैसे खाना रहेगा, कैसे हम लोग करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, वाकई में देयर वाज डिफिकल्टी, बट वो चीज़ अभी नहीं है, लेकिन आपके वो ब्रेन सबकॉन्शियस में वो स्टोर हो गया। अब क्या हो रहा है, अब कुछ भी सब कुछ ठीक है, फिर भी वो प्रॉब्लम जो है कभी आती रहती है, वो पॉप अप करता है, वो नेगेटिविटी आ जाएगा। उसके लिए क्या करना है, नॉट, दिस इज नॉट अ वन डे अफेयर, दिस व्हाट वी डू व्हेन द पर्सन कम्स टू अस, वी मेक हिम टॉक अबाउट 3 things that happened good in the day। आज के दिन में तुम 3 चीज लिखो जो कि तुम्हें अच्छा लगा, ठीक है। सो कैन एनीबॉडी शेयर कि आपने क्या लिखा है और क्या उसका अगेंस्ट में क्या था, कोई बोल सकता है? सी, दिस इज वेरी पर्सनल ऑफ योर्स, तो देयरफॉर आई विल नॉट नीदर आस्क द पीपल, नॉट मैं आपको कुछ शेयर करने के लिए कोई फोर्स करूंगी। कोई बोल सकता है? यस, नहीं बताना। मैंने लिखा है सब कुछ होने का डर, और उसके सॉल्यूशन में आयोजन, पनिश लगेनी बोल दे कारण, और उस पर काम करना और ध्यान, ये मैंने मेरे स्तर पे
नहीं, आप करते हो या ये आपको करना है? ये मेरे मेरे स्तर पे समस्या के समाधान के लिए कुछ हद तक मैं करती हूँ। करते हो, ओके फाइन, ठीक है, वेरी गुड, ओके, एनीबॉडी एल्स? यस, Fear of unknown. फियर ऑफ अननोन, तो कैसे क्या है उसका अगेंस्ट में? इसको कैसे लिखना है वो मैं थोड़ा बता दूँ। पॉइंट्स पे नहीं लिखना है इसको, जैसे आप फ्रेंड को समझाते हो वैसे लिखना है। क्यों? अभी तेरे पास तो सब कुछ है ना प्रेजेंट में। कैसे आप फ्रेंड को कैसे बोलते हो? अभी तेरे पास सब कुछ है ना प्रेजेंट में, वैसे लिखना है कि अभी तुम्हारे पास सब कुछ है प्रेजेंट में, तो क्या सोचना, ऐसे बोलते हैं ना फ्रेंड को, वैसे। सेकंड पॉइंट क्या है? Enjoy what comes to you. and- हाँ, अभी आज जो तुम्हारे पास है, अभी तुमने दिवाली कितने अच्छे से सेलिब्रेट किया, तुम्हारे पैर में प्रॉब्लम थी, तब भी तुमने दिए जलाए, तब भी तुमने सारे लाइट्स जलाए, तब भी तुमने दिनेश भाई को 5,000 रुपए दिए, है ना? तो यू हैड दैट फीलिंग, आप उस चीज में भी सब कुछ कर रहे हो ना। सो व्हाट इज दैट? टॉकिंग इन पॉजिटिव, है ना, जैसे पॉजिटिव, जैसे आप नॉर्मली बात करते हो किसी से, वैसे लिखना है। लिखना क्यों है उसका भी रीजन बताना। Worry never works. हाँ, Worry never works. ये worry never works, इसमें दो नेगेटिव शब्द हैं। कौन कौन सा? worry और never। worry और never। तो जब हम ऐसे काउंसलिंग से बात करेंगे और फ्रेंड को काउंसलिंग करेंगे या किसी को भी काउंसलिंग करेंगे, वी नीड टू टेक केयर दैट इसको ऑपोजिट कर देंगे। तो वरी नेवर वर्क्स को पॉजिटिव तरह से, बिना वरी और बिना नेवर वर्ड के यूज किए आप कैसे इस सेंटेंस को फ्रेम करोगे, बताओ कैसे फ्रेम कर सकते हैं? हाँ, अरे तुम तो इतनी पॉजिटिव हो, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ तुमने सक्सेसफुली हैंडल कर लिया, है ना? तो हर चीज तुम हैंडल कर सकते हो, इसमें कोई नेवर है? हाँ, तो हम जो क्लास में यूज करते डोंट टॉक, व्हाट इज दैट? डोंट टॉक, दैट इज व्हाट? नेगेटिव। बच्चे को क्या दिखाई दे रहा है? और अगर आप बोलते हो बी पीसफुल, बी पीसफुल, बी पीसफुल, तो क्या उसके ब्रेन में क्या जा रहा है? पीस जा रहा है, पीस जा रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज व्हाट, दिस इज प्रोएक्टिव काउंसलिंग, सिंपल टेक्निक इन क्लास। बी पीसफुल, आपको कैसे महसूस होगा जब आप ये कहें? व्हेन यू विल से दिस, हाउ विल यू फील? बी पीसफुल, ऑल ऑफ यू टीचर्स, बी पीसफुल, बी काम, कैसा फील होगा? मुझे कैसा फील होगा? से, है ना? सो दिस इज कॉल्ड प्रोएक्टिव। अंडरस्टैंडिंग दिस आई यूज्ड इट फॉर वन स्टूडेंट। थॉट नेगेटिव जो है वो मैंने लिखा, ठीक है? क्यों चीजें सही से नहीं चल रही है? तो चाइल्ड पर्सन एक काम करो, तू बता कौन सी 3 चीजें तेरी लाइफ में सही चल रही है, बोली छोटी चीज नहीं है जो तुझे लगता है तेरी लाइफ में सही चल रही है। यहाँ पे क्या लिख रहा है? क्यों चीजें सही से नहीं चल रही है? तो मैंने वही चीजें पकड़ ली। अब बता कौन सी चीजें तेरी लाइफ में सही चल रही है? तो व्हाट द चाइल्ड रोट, आई हैव सपोर्टिंग पेरेंट्स, आई गेट हेल्दी एंड न्यूट्रिशियस फूड, आई गेट व्हाटएवर आई विश फॉर। मैंने कहा वाह, और क्या चाहिए? तुझे जो चाहिए वो मिल रहा है तुझे, और क्या चाहिए? फोकस चेंज करा दिया। दिस इज नॉट, अब ऐसा मत सोचना ये कर दिया तो काउंसलिंग होगा, ठीक है? दिस इज वन एस्पेक्ट टू चेंज द माइंडसेट, बिकॉज चेंज माइंडसेट नहीं करेंगे तो वो एक्शन कैसे लेगा? उसको तो अभी बहुत कुछ कराना है, उसको पढ़ाना है, वो पढ़ेगा, 10th का एग्जाम देगा या 12th का एग्जाम देगा, वो सब करवाना है ना उससे। तो सबसे पहले उसको पॉजिटिव वो एडप्ट वाले एक्टिविटी के स्टेज पे तो ले आओ। तो दिस इज व्हाट डज हाउ टू ब्रिंग दैट पर्सन टू दैट लेवल वेयर ही कैन बी रिसेप्टिव टू काउंसलिंग। ओके, इंटरेस्टिंग? यस, ओके। एक और चीज मैं आपको कराऊंगी, ये आज इतने कराएंगे, फिर मैं, दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ काउंसलिंग जो आपको हर इसके लिए बहुत तरह के सेमिनार्स होते हैं, बहुत बुक्स हैं जिसको कहते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। वी विल बी हैविंग अ क्लैपिंग कॉम्पिटिशन, ठीक है? यहाँ पे सर थोड़ा हमने इंटरनेशनल क्लैपिंग कॉन्टेस्ट हमने क्रिएट किया है, तो आप कॉन्टेस्टेंट हो तो आपको ताली बजानी है और आपकी जजमेंट होगी। आप कैसे ताली बजाते हो उसके ऊपर आपकी जजमेंट।
राधे 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 बस So, ma'am, this is an international clapping contest, and we have organized this clapping contest, and people will be clapping, and there will be judgment on the basis of that. Clap, teacher. Okay, take your seat. Okay. तो अब जो जजेस हैं वो बाहर आ जाइए। आपस में आप लोग बात कीजिए। आपस में आप लोग बात कीजिए। और सिर्फ आपको जजमेंट अनाउंस करना है, नॉट दैट क्यों क्या कुछ नहीं। अच्छा, अकॉर्डिंग टू यू हु इज द विनर? एलिजाबेथ मैम। एलिजाबेथ मैम, एलिजाबेथ मैम। ओके, गॉड ऑफ सर इधर हो। एलिजाबेथ मैम, सर ऐसा क्यों हुआ आपके साथ? मुझे एक रीजन तो लग रहा है ना, पक्का मुझे एक रीजन लग रहा है कि वो कितने सॉफ्टली इतने अच्छे से गाना बजाती, पर इनको इसलिए नहीं मिला होगा ना क्योंकि एलिजाबेथ मैम कोऑर्डिनेटर है, तो उनको तो कुछ करना जरूरी है। आप कंफ्यूज हो गए, क्या कंफ्यूजन था आपको? पर आपने क्लैपिंग तो किया, तो समझ में तो आपको आया, तो अचानक से क्लैपिंग का कैसे? ऐसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, वो अचानक से कुछ भी ले आते हैं, नहीं? ओके, ठीक है। एलिजाबेथ मैम, हाउ आर यू फीलिंग? Good. First, okay. Why did you think that you have come first and he did not yet? I don't know what he did, but maybe I followed your instructions. Okay, fine. तो यहाँ पे देखो तीन लोगों के तीन तरह के सोच हैं। मैंने क्या बोला? एलिजाबेथ मैम को इसलिए मिला होगा बिकॉज शी इज कोऑर्डिनेटर। इन्होंने क्या बोला? मुझे इसलिए नहीं मिला बिकॉज मैं बहुत कंफ्यूज हो गया था। अब यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो है ना, ये वैलिडेट कर रहे हैं चीजों को, है ना? और एलिजाबेथ मैम क्या कह रही है? आई फॉलोड योर इंस्ट्रक्शन, है ना? सो जो विनर है वो क्या कह रहा है? इट इज माई एफर्ट एंड माई टैलेंट बिकॉज ऑफ विच नाउ forget Elizabeth मैम, गौरव सर एंड मी। नाउ ट्राई टू एनालाइज द थॉट प्रोसेस। तो एलिजाबेथ मैम के थॉट प्रोसेस में क्या दिख रहा है? हाँ, उन्होंने वो फॉलोड द इंस्ट्रक्शन। आई फॉलो, वो ये नहीं बोले आपने बड़े अच्छे से इंस्ट्रक्शन दिया, है ना? उन्होंने क्या बोला? आई फॉलो द इंस्ट्रक्शन। तो दैट मींस दैट इनका सेल्फ एस्टीम इस एक्टिविटी से रिलेटेड स्ट्रॉन्ग है ना? और ये क्या बोल रहे हैं? अचानक से चीजें आ गई ना तो मैं कंफ्यूज हो गए। तो व्हाट इज दैट? External situation is responsible for my failure. Actually, teachers partial है ना? टीचर ठीक से नहीं पढ़ाते हैं ना? टीचर एक्सप्लेन नहीं करते हैं ना? टीचर रूड है ना? मेरा बच्चा बहुत डरता है टीचर से, जिसके कारण मेरा बच्चा पीछे है। और मेरा कैसा था? हाँ, वो तो टीचर का बच्चा है ना, उसको तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो फर्स्ट होगा ही होगा। अंडरस्टैंड थ्री कॉन्टेक्स्ट, है ना? तो ये है कॉन्टेक्स्ट जिसमें कि हर एक व्यक्ति एक ही सिचुएशन, क्लैपिंग कॉन्टेक्स्ट, एक ही तरह क्लैपिंग कॉन्टेस्ट था। क्लैपिंग कॉन्टेस्ट में सबका सोच अलग अलग था, सबकी परफॉर्मेंस अलग अलग थी, परफॉर्मेंस का बाद रिजल्ट मिला, रिजल्ट अलग अलग हुआ। अब इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं, ठीक है? Just imagine Vigos who get result and they declare Gaurav sir. Now what Elizabeth ma'am and Gaurav sir? हाँ, गौरव सर, very good question। अब गौरव सर, अगर इसी सिचुएशन में आपको डिक्लेयर किया गया कि वैशाली मैम को जज बनाया गया और वैशाली मैम के अनुसार वो कह रही है कि मुझे तो गौरव सर बेस्ट है, इधर अब आपको क्या लग रहा है कि गौरव सर, वैशाली मैम, जागृति मैम एंड स्नेहा मैम, हाँ, 3 are the judges now. They are saying that Gaurav sir first. How much you feel? आप क्यों फर्स्ट? मतलब वो कह रहे हैं आप फर्स्ट हैं? But exactly
नहीं प्रॉपर है, और लाइक एक वो एक वेस्टर्न भाव हो के भी ये किया है, तो थोड़ा एक तो आपको मतलब क्या लग रहा है कि फैशन में झूठ बोल रहे हैं? नहीं झूठ नहीं, बट एक अंदर एक वेस्टर्न भाव होगा। क्वेश्चन मार्क क्यों होगा? मतलब आपको किसके लिए क्वेश्चन मार्क? वैशाली मैम के जजमेंट के ऊपर क्वेश्चन मार्क? नो अबाउट द परफॉर्मेंस। About your performance. तो this kind of thought process अगर किसी बच्चे का है, that means self doubt कि मैं फर्स्ट तो आया पर मुझे फर्स्ट कैसे बनाया? Okay, I tell you, मैं अभी इसी सिचुएशन को अगर पेंटिंग से रिवर्स कर दिया जाए कि गौरव सर या आफ्टर सेकेंडरी साइन उसका हाँ, अगर ऑनेस्टली बताइए, अगर इसके बाद आपको पता चलता है कि गौरव सर कम्स फर्स्ट, तो आपको क्या कैसा फील होगा? Maybe I feel that there's something which I have not done properly. Because she did not witness, na? She did not witness. Maybe something which I have not done. Again, she is what she told? I focus. That means effort focus. अगर कोई रिजल्ट खराब होता है, मेरी जिम्मेदारी, अगर कोई रिजल्ट अच्छा होता है, क्रेडिट गोज टू मी भैया। मैं किसी से क्रेडिट बांटूंगी नहीं, और अगर कुछ गलत होगा तो आई एम रिस्पॉन्सिबल। यहाँ पे वीरेंद्र सर ने बहुत अच्छी बात कही कि यहाँ पे गौरव सर ने ये नहीं पूछा कि मैम आई वांट टू नो द क्राइटेरिया कि किसके बेसिस पे जजमेंट हुआ, है ना? उन्होंने ये नहीं पूछा। दैट मीन्स उन्होंने डिसीजन को ना स्वीकार कर लिया, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो अच्छा परफॉर्म ही नहीं किया, मैं तो बेकार परफॉर्म किया, है ना? या मतलब कुछ भी, इन्होंने उस चीज़ को स्वीकार कर लिया। और वैसे भी आप देखो गौरव सर का अगर पर्सनालिटी देखो, अगर उनके साथ आप थोड़ा सा गुस्सा करके बात भी करोगे ना, वो रिटेलिएट नहीं करेंगे कि क्यों आप ऐसे भी बोल रहे हो, करते हैं। अब देखो एक छोटे से गेम में भी उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को रिवील किया ना, कि ऑल तो अंदर से इरिटेटेड रहेंगे, मेरे साथ ऐसा फिर ऐसा कर, उसको छोड़ूंगा नहीं, पर ऊपर से कुछ नहीं करेंगे, दिखाएंगे नहीं ना, वेरी सॉफ्ट काइंड ऑफ पर्सन, राइट? सो उनकी जो पर्सनालिटी है ये छोटे से गेम में भी दिखा कि ठीक है ना, जो भी सिर्फ पीस चाहिए, मुझे शांति चाहिए, किसी को भी ज़्यादा तकलीफ ना हो, बस शांति से चलो ना, हारे गए ना, क्या हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं अपने जाके पेंटिंग कर दूँगा। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से आप किसी के भी थॉट प्रोसेस को समझ सकते हैं। जब वो कोई बात कर रहा है, जब वो मुंह खोल रहा है, इसका मतलब वो अपने पर्सनालिटी की बात कर रहा है, तो समझ जाओ कि वो कौन से माइंडसेट है, सेल्फ डाउट है, सेल्फ स्टीम है, कन्फ्यूजन है। अब अगर सोचिए एक व्यक्ति था, उसे बड़े समय से मन कर रहा था कि एक फॉर्च्यून 500 का मैगजीन, उसमें उसका पिक्चर फ्रंट पेज पे है, बहुत अच्छे से मेहनत भी कर रहा था, बिजनेस भी कर रहा था, कभी नहीं आ रहा था, बड़ा ट्राई कर रहा था कि मेरा उसमें पिक्चर आ जाए, पिक्चर आ जाए, पिक्चर आ जाए, बड़ा कितना खुश हो जाऊँगा। एक दिन उसका इंटरव्यू आया और उसका पिक्चर आ गया, उसमें फोटो आ गया, एंड दिस पर्सन वाज वेरी वेरी अपसेट। उस दिन सबसे ज़्यादा वो अपसेट था, सबसे ज़्यादा वो परेशान था। क्यों? Okay, photograph is because of other reason. Okay, हाँ? Over expectation. Okay, और first page में फोटो आया कि he is the richest person, best businessman. Okay, आगे गोल नहीं रह गया. Okay, और कुछ? जब चाहिए थे तब नहीं है, जब वो चाहता था उसका फोटो, जब चाहता था, नहीं अभी भी चाहता था, कल तक भी चाहता था कि आज आएगा कि नहीं आएगा, बस मेरा फोटो आ जाएगा। सेल्फ डाउट Okay, okay, I'll tell you what. हाँ, नहीं उसी रीजन से आया उसका फोटो। Okay, उसने सोचा अच्छा ये फॉर्च्यून 500 मैगजीन, मैं तो बड़ा इनको अच्छा सोच रहा, ये तो क्या बेकार मैगजीन है, मेरे जैसे इंसान का फोटो लगा दिया, मेरे जैसा इंसान का फोटो लग गया, तो इसका मतलब ये कितना बेकार मैगजीन होगा। डीएवी स्कूल, मैं तो इसको बहुत अच्छा स्कूल मानती थी, इसमें मेरा इंटरव्यू में मैं क्लियर हो गई, कैसा बेकार स्कूल होगा ये, तो मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा एडमिशन हो गया, तो डीएवी स्कूल को मैं बड़ा अच्छा मानती थी। यहाँ मुझे लग रहा था कि बड़े बड़े लोगों का एडमिशन नहीं होता है, मेरा हो गया एडमिशन,
क्या है? लो सेल्फ स्टीम, सेल्फ डाउट। तो ये सारी चीजें जब तक पता नहीं चलेगा ना, तब तक कोई लेक्चर काम नहीं करेगा कि कौन से डायरेक्शन में काम करना है। सो दिस इज कॉल्ड ABC मॉडल। A इज व्हाट? एंटीसीडेंट बोलते हैं इसको साइकोलॉजी में। एंटीसीडेंट का मतलब क्या है? सिचुएशन। सिचुएशन यहाँ पे सबके पास क्या था? दोनों के पास क्लैपिंग कॉन्टेस्ट सेम था, रिजल्ट आया सबका। बिहेवियर इज व्हाट? कैसा हम रिस्पॉन्ड करते हैं उस सिचुएशन से। C is what? Consequence, right? For example, अब situation is principal ने आपको बुलाया, so now शिल्पा मैम is going. ममता मैम is going. हाँ? कोई का लेटर है? हनुमान मैम ने बुलाया। हाँ जाओ ना। हाँ क्यों बुलाया? नहीं एक्चुअली आपको तो पता होगा ना। तो नहीं मुझे नहीं पता। So what is the difference? दोनों को बुलाया ना प्रिंसिपल मैम ने। One is situation, antecedent. B is behavior. और behavior क्या है? ममता मैम का घबराहट, उनका कॉन्फिडेंस। अब दोनों पहुंचे वहां पे। अब कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? थोड़े सालों के बाद इस तरह से रिपीटेड बिहेवियर होते होते द पर्सन, नॉट ममता मैम, मतलब ममता कोई और है, तो वो जो ममता है ना, बीमार होना शुरू हुआ बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट बिहेवियर। कॉन्स्टेंट कोई भी सिचुएशन हो, मैं कैसे करूँ? ऐसे होता है ना कुछ लोगों का, आपने देखा ना, कोई भी सिचुएशन आएगा, हालांकि मेरी सिचुएशन दूसरे के लिए भी है, वो क्या करेगा? अच्छा छोड़ ना, देख लेंगे, हो जाएगा, सोचेंगे कुछ ना कुछ हो जाएगा। अरे कोई बात नहीं, अनु को फोन करते, कोई ना कोई सोल्यूशन दे देगी, मैं ये कर देती हूँ कि चलो अनु को फोन कर देते, अनुपमा मैम को फोन कर देते, कोई ना कोई सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा। सो व्हाट इज दैट? What is that? I am also having the same situation. Other person is also having the same situation. But I am saying that I am not allowing the panic to attack me. So I am getting the solution. अच्छा थोड़ा शांति रखो ना, सोचना बैठ के, मिल जाएगा कोई ना कोई सोल्यूशन। अब हर बार में तो फोन नहीं करूँगी ना, है ना? डिपेंडेंट भी तो नहीं होना है ना सबके ऊपर। Then again अनु मैम बिजी है तो फिर घबराओ, अब मुझे कौन सिचुएशन देगा? अनु मैम भी नहीं है, अनुपमा मैम भी नहीं है, मैं तो गई। So that means अच्छा थोड़ा शांत हो जाओ, हो जाएगा, सोल्यूशन बन जाएगा। कितने बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व किए तुमने, ये भी हो जाएगा। दिस इज व्हाट बिहेवियर। कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? कैन बिकम अ गुड टीचर, कैन बिकम अ गुड साइकोलॉजिस्ट, है ना? कैन बिकम अ गुड लीडर, कैन लीड अ वेरी पीसफुल एंड हेल्दी लाइफ। यही तो चाहिए हमें, isn't it? So this is antecedent behavior. ABC मॉडल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अब हम क्या करते हैं? बच्चों में हम बिहेवियर को देखते हैं। मैम इसको संभालो, पीट रहा था इसको, मार रहा था उसको। क्या देख रहे हैं? क्या देख रहे हैं? बिहेवियर। अब बिलीव क्या हो सकता है इनका? ये मारपीट क्यों कर रही है? बिलीव क्या है? उधर मत देखो, इधर देखो मेरी तरफ। बिलीव क्या है? अरे आंसू नहीं बोलेगा। हाँ कि मैं अगर मारपीट करूँ तो पावर मिलेगा, बाकी बच्चे जो है मेरे से डरेंगे, तो मैं मारपीट क्यों कर रही हूँ? बिकॉज माई बिलीव इज दैट मारपीट करने से ही मुझे पावर मिलेगा। और टीचर जो है, टीचर कुछ बढ़ा रहे हैं, है ना? मैडम पर आपने मुझे ऐसे बोला था, कल आपने ऐसे बोला था, आज आप ऐसे बोल, पर मैम ऐसे तो नहीं होता मैम, मैंने कल वहाँ पे टीचर पे बढ़ा था, ऐसे करते हैं कुछ बच्चे। अब उनका बिलीव क्या है? If I interrupt in between and ask questions, that means that everybody will feel that I am intelligent. है ना? उसका बिलीव क्या है कि ये बिहेवियर के पीछे बिलीव क्या है? हमें बिहेवियर को चुप नहीं कराना, हमें किसको शांत करना है? बिलीव को। तो अगर मैं बोलती हूँ
बहुत पावरफुल है ना। तो व्हाट इज दैट, क्या कर रही हूँ मैं, इनके दिमाग में स्टोर्ड है कि मारपीट का मतलब पावर होता है, बट मैं यहाँ पे अटैच कर रही हूँ दूसरे को संभालना, इंटरपर्सनल स्किल्स, टॉकिंग प्रॉपर्ली विद अदर्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, वो पावर है। तो धीरे धीरे इनको क्या, अच्छा ये क्वालिटीज को कैसे संभालती है, जब मैं भी तो ये फिर ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, शी विल ऑब्जर्व, हाँ, ग्रेजुअली शी विल लर्न, राइट। सो अटैक विद द बिलीफ, नॉट विद द बिहेवियर। व्हाट वी डू, हम क्या करते हैं, वी अटैक द बिहेवियर एंड इग्नोर द बिलीफ। तो यहाँ पे बिलीफ में क्या क्या है, नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द क्लास, देयर विल बी नो यूज। टीचर कोई कभी तारीफ ही नहीं होती है, टीचर इंसान का देखे मुझे क्लास में कुछ भी बोला ना, टीचर देखो उसको कैसे इंसल्ट करेगा, बोलने का मतलब ही है टीचर इंसल्ट करेगी, इससे अच्छा बोली मत। उसके बाद हेड टीचर क्या बोलेगा, किरण तुम बोलती क्यों नहीं हो, कुछ बोला करो क्लास में, क्यों नहीं बोलती हो ना। पेरेंट टीचर्स मीटिंग में, मैम आपका बच्चा जो है बोलता नहीं है, थोड़ा एकदम शांत बैठे रहते हैं, अब उसको बोलो ना थोड़ा कुछ बोलने के लिए, अरे भैया तुमने इतना इंसल्ट कर दिया बाकी बच्चों को, वो बोलना बंद कर दिया, तो इसका बिलीव पहले ऑब्जर्व करो कि वो बोल क्यों नहीं रहा है ना। गॉट इट, यस। नेक्स्ट इज व्हाट, अब्यूजिंग, इट गेट्स मी एट, गाली दे रहे किस लिए दे रहे, फिल्म में वो क्या देख रहे हैं, जो गाली दे रहा है वो पावरफुल है। तो when you attach the word power with other things in the class, wow, she's so powerful, she's so powerful, कितने poised, composed तरीके से वो करा था, so powerful, it is not easy, so much of power she has in mind। धीरे धीरे उसको बदलो, उसके perception को, उसका abusing change होगा ना, क्योंकि धीरे धीरे वो पावर को दूसरे के साथ एसोसिएट उसके ब्रेन में करना शुरू हो जाएगा। When is aggressive, you need to fight to survive in this harsh world। कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि आप देखोगे कुछ टीचर्स भी ऐसे होंगे जो अपनी चीज़ें शेयर नहीं करते हैं, दूसरों से चीज़ें ले लेंगे और अपनी चीज़ें नहीं देंगे, और थोड़ा सा सेल्फिश नेचर के होते हैं, है ना। अपने आसपास भी देखना, आसपास कुछ लोग मिल जाएंगे आपको, तो उसका उनका बिलीव क्या है, इस दुनिया में रहने के लिए ना थोड़ा सेल्फिश होना पड़ता है। फिर जो गरीब है, मेड्स के बच्चे हैं, उनको कुछ देंगे नहीं, कुछ खाना पीना नहीं कराएंगे, इनके लिए ना जो भी करो ना बेकार है, कभी ये लोग ग्रैटिट्यूड फील ही नहीं कर सकते, दीज आर थैंकलेस पीपल। तो इसके लिए मैं इनको हेल्प ही ना करूँ, अभी वी ऑल्सो यूज इट ऑन इट। तो इसका मतलब क्या है, हमारा बिलीफ वो बचपन से ऐसा बनता रहेगा, हमारा बिलीफ ऐसे बचपन से बनता रहेगा, जिसके कारण हम आज वैसा बिहेवियर करते हैं, राइट। नेक्स्ट इज नॉट आस्किंग एनीथिंग इन क्लास, क्योंकि आपने कभी भी ये सोचा है कि क्लास में जब आप सवाल पूछते हो, एक बच्चा क्वेश्चन पूछ आंसर दे रहा है और वो गलत आंसर दिया, आप हंसे और बाकी बच्चे हंसे, और आप नहीं हंसे पर बाकी बच्चे हंसे, आपने कभी उसके ऊपर इंटरवेंशन लिया नहीं लिया। वी आर द क्रिमिनल्स इन दिस। आपने इमोशनली डेली एक बच्चे का मर्डर किया इमोशनली। कैसे? आपने सवाल पूछा, उसने गलत आंसर दिया, बाकी सारे बच्चे हंसे, आपने बोला बच्चे डोंट लाफ, बेटा हाँ बोलो, चलो बैठो, वी हैव डन। एटलीस्ट एक अच्छा टीचर बस इतना करे, बट इसके लिए कोई इंटरवेंशन नहीं है। ओके फाइन, यस मैम, रुबी मैम, व्हाई डिड यू लाफ? प्लीज टेल मी व्हाई डिड यू लाफ। सपोज मैं ऐसा पूछती हूँ, तुरंत रुबी मैम का क्या होगा? हाँ, उनको लगेगा अरे बाप रे, मैं हंसी। अब 5 बच्चों को रुबी मैम, यू आर वेरी नाइस पर्सन, very good person, very good boy, very good girl, and I know that जब कोई आंसर नहीं दे पा रहा है या उसकी डिफिकल्टी हो रही है, तो आपके मन में ऐसा फीलिंग आएगा कि you will pray for that person that वो जवाब दे पाए, or you will help that person rather than that. I know that you want to do that. इतना बोला, वो मैसेज मिल गया। This is called intervention. This is called, मैं तो आपके क्लास में हंसी पट्टी लुटेगी नहीं, और सेल्फ एस्टीम की प्रॉब्लम हर किसी को होगी, हर
करोगे, do it or not? Yes or no? Right? So this is the biggest crime which we are doing. कि हम कभी भी बच्चों के अंदर वो सेंसिटिविटी जगने नहीं देते और कभी कभी तो खुद भी वैसे मजाक करते हैं। अच्छा अभी तक तुम सो रहे थे क्या? Were you sleeping in the class? There are teachers who speak like this, knowingly, unknowingly, जानते हुए बिना जानते हुए। Although as a person that person doesn't have the motive कि उसके ऊपर इफेक्ट क्या हो रहा है, वो रात को सो पा रहा है कि नहीं सो पा रहा है, पर उसकी बदुआ हमारे पास डिजीज के रूप में जरूर पड़े। हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं किसी भी बच्चे को, वो हमारे लाइफ में ही वापस आते हैं। सो वी हैव टू टेक केयर कि हम किस तरह के भाषा बोलते हैं बच्चे का, बिकॉज यूनिवर्स का ये लॉ है कि अगर हम एक चीज़ देते हैं वो थोक के भाव में वापस देता है। कैसे एक सीड, मैंगो सीड जब हम बोलते हैं तो वो एक ही मैंगो देते हैं, थोक के भाव में देते हैं। तो अगर हम एक बच्चे को किसी भी सरकास्टिक रिमार्क्स दिया, यूनिवर्स आपको काफी सरकास्टिक इतना थ्रो करेगा कि आप खुद परेशान हो जाएंगे। राइट? ओके, सेकंड, नॉट कंप्लीटिंग होमवर्क क्या है? बोरिंग है, बहुत बड़ा बोरिंग है, बैठने का मन ही नहीं करता है। राइट? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द बिलीफ सिस्टम, दैट्स इट। अभी डी मैं बाद में कभी पढ़ूंगी। ओके, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम टुडेज सेशन, टुडेज क्लास? क्या सीखा? पॉइंट्स बताओ जल्दी। फर्स्ट एक्टिविटी हमने क्या किया? हाँ, एरोप्लेन फेंका। एरोप्लेन से क्या सीखा? वेरी गुड। जब भी हम काउंसलिंग करते हैं या कोई चीज पढ़ाते हैं, वी नीड टू मेंटेन दैट इज प्रोएक्टिव काउंसलिंग। पॉजिटिव एनवायरनमेंट को मेंटेन करेंगे तो ही काउंसलिंग जो है रिसेप्टिव होगा। और क्या सीखा? बैलून एक्टिविटी। बैलून एक्टिविटी से क्या सीखा? That counseling should be goal oriented and it has to be long term. There has to be long term approach. हमें देखना होगा जब तक हम क्लोज तभी करेंगे जब हम देखेंगे कि उसके अंदर वो चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है। ओके, व्हाट इज दैट? बैलून एक्टिविटी के बाद क्लैपिंग वाला हमने एक्टिविटी किया। क्लैपिंग इज व्हाट? उससे हमने कौन सा टेक्निक सीखा? एबीसी। क्या बोलते हैं उसको? एबीसी। ए का मतलब क्या है? तो जब भी हमारा कोई कॉन्सिक्वेंस होता है, मान लो कि हम बीमार पड़ते हैं, हम दुखी हैं, उसके पीछे क्या छुपा हुआ है? बिलीफ। तो हम जब परेशान हैं, दुखी है ना, या हमारा बिहेवियर, हमें अकेलापन लग रहा है, राइट? तो हमें बिलीफ देखना है कि बिलीफ में हमें, मेरे पास तो कोई दोस्त ही नहीं रहता, मेरे तो कोई फ्रेंड ही नहीं बनता, तो ये बिलीफ होगा। तो इसका मतलब आई एम नॉट एबल टू एंजॉय माय कंपनी। ठीक है? तो बिलीफ को पकड़ने की जरूरत है अगर हमें कॉन्सिक्वेंस को बदलना है। तो सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है। प्रिंसिपल बुलाए के आपके कंट्रोल में है? नहीं है। बट आप अपने रूम से प्रिंसिपल के रूम तक कैसे जाएंगे वो आपके कंट्रोल में है, isn't it? कॉन्सिक्वेंस क्या होगा आपके कंट्रोल में फिर भी नहीं है कि आप कॉन्फिडेंस से वापस गए तो वो सिचुएशन का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? प्रिंसिपल डांटे या आपकी तारीफ करे वो आपके कंट्रोल में है? ये फिर एक सिचुएशन आ गई, फिर एक सिचुएशन। प्रिंसिपल डांटे वो आपके हाथ में है? नहीं है। प्रिंसिपल डांटने के बाद आप घर पे जाके बच्चे के ऊपर चिल्लाओ, चीखो, या फिर आप म्यूजिक सुन के खाना बनाओ, वो आपके हाथ में है या नहीं है? है ना? सो situation will not be in our control, but behavior is in our control. By changing the behavior, we can change the belief. ठीक है? तो हमारा consequence change हो जाएगा। तो हम जितना अपने belief को, behavior को देखो, दोनों तरफ से आप काम कर सकते हो। आप belief को change करो, क्योंकि difficult है belief को change करना। थोड़ी देर तक behavior को change करो। मन में दुखी हो रहे हो, गाना चला के गाना सुनो, डांस करो, तो फिर आपको क्या लगेगा? हाँ, कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा फील हो रहा है। सो यू कैन वर्क ऑन बिहेवियर एंड चेंज योर बिलीफ। यू कैन वर्क ऑन बिलीफ एंड चेंज योर बिहेवियर। है ना? क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा डांटी तो देंगी। व्हाट इज दैट? वर्किंग ऑन बिलीफ एंड देन चेंजिंग द वर्किंग। ठीक है? तो बिलीफ